Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are talking about CSAT quantitative aptitude, and in this we are going to cover percentage part 2. We have already covered percentage part 1. If you haven't watched, go and watch percentage part 1 video where we have discussed few questions, and in today's session we are going to discuss some more questions. Now let's start. Now basically what does this question says? So this question says a school has only 3 classes which accommodates 40, 50 and 60 students. Okay. So we have 40 students, 50 students and 60 students. The percentage of pass student in these 3 classes are 10, 20 and 10%. Okay. So we got 10% over here. We got 20% over here. We got 10% over here. And total number of students, I can see they are 150. Okay. So 10% of 40 comes out to be 4, 20% means 1/5, 1/5 of 50 comes out to be 10, and this comes out to be what? 6. 10% of 66. So what are the total number of students who have passed the exam? That is going to be 20. Now question is saying percentage of passed students. So we have 20 students out of 150 that are clearing the exam into 100. So basically it cancels out. This is 3, this is 20. So we have 40 upon 3. That's the percentage. So 40 upon 3 is equal to 13.33%. So answer of this question is going to be option C. Now let's move on to the next question. What does it says? Okay. In an organization, there are 80% workers and remaining are officers. Okay. 85% of workers and 70% of the officers are male. If the number of females in the organization is 72, the number of male officers in the organization. Okay. So I am going to assume total number of people are 100x. Okay. Out of 100x, how many are worker? 80x are worker, and remaining 20x are your officers, right? Okay. Now 85% of workers are male. So 85% of workers are male. So this should be something. And if male are 85, then female should be 15%. So what is 15% of 80? So 15% comes out to be 15 by 100 into 80. So I can directly say this is 4, this is 5. So this comes out to be 12x. So 12x are females. So 68x are males among workers. Okay. And 70% of the officers are male. So 70% of the officers means how much? 70% of 20 is going to be 14x. So female are going to be 6x. Okay. What is the total number of females we have? That is 18x, and it says that is equal to 72. So that gives us x equal to 4. Okay. Now the question is talking about what is the number of male officers. So number of male officers are going to be what? 14 into x. So 14 forza comes out to be 56. So answer of this question is going to be option D. That is going to be 56. Okay. Now let's move on to the next one. What does it say? Okay. If 20% of A is 50% more than 30% of 80% of B, then what percent of B is A? So basically, whenever question says what percent of something is something. So what percent of means B goes to denominator and A comes to numerator. So what percent of B is A into 100? This is how we are going to represent this. So basically, I need to figure out what is the value of A by B into 100. Okay. So what we are going to do, I am going to assume that the value of B is 100. So what is 80% of B? So 80% of 100 is 80. 30% of 80 is going to be 24. So basically, 30% of 80% of B is 24. Now 20% of A. So 20% of A is 1 by 5 of A. Okay. Is 50% more than 24? So 24 का 50% कितना होगा? 12. So basically 12 24 से 12 ज्यादा है. So that is equal to what? 36. So what is the value of A we are getting? That is equal to 180.
So my answer should be 180 divided by 100 into 100. That gives us 180%. So answer इसका आ जाएगा 180%, and that's going to be option C. Now let's move on to the next question. What does it says? It says Pranita got 30 more marks in maths than she got in science. Okay. सो उसके जो साइंस के मार्क्स हैं, सो अगर साइंस के मार्क्स x हैं, सो मैथ के मार्क्स x प्लस 30 होने चाहिए, राइट? टोटल मार्क्स कुछ तो होंगे, लेट्स से टोटल मार्क्स है, उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं प्रणीता के, लेट्स से टी आए हुए. हर मैथ मार्क्स आर 60% ऑफ द टोटल. ओके, सो बेसिकली मैथ के जो मार्क्स हैं वो 60% ऑफ टोटल हैं. तो साइंस के मार्क कितने होंगे, 40% ऑफ द टोटल होने चाहिए, राइट? इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%, एंड 20% इज इक्वल टू दैट वी ऑलरेडी नो, दैट इज इक्वल टू 30, राइट? सो साइंस में कितने मार्क्स हैं, तो अगर 20% 30 है तो साइंस में 40% मार्क्स है, मतलब साइंस में 60 मार्क्स होने चाहिए. सो वी गॉट आवर आंसर डायरेक्टली, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 60. इसमें बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. Okay, in an examination, A obtained 10% more marks than B, B obtained 20% more marks than C, and C obtained 32% less marks than D. If A obtained 272 more marks than C, तो B के कितने मार्क्स हैं? ठीक है. सो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो D वाली बात है इसका कोई सेंस नहीं लगता है हमको, तो D को इग्नोर ही कर देते हैं. So what I am going to assume, I am assuming that जो C के मार्क्स हैं that they are 100x. Now you might think कि कुछ क्वेश्चन में हमने 100 assume कर लिया, कुछ क्वेश्चन में 100x assume कर रहे हैं. So 100x assume करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे ये 272 एक एक्चुअल नंबर गिवन है. जब भी आपको किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर देखे, परसेंटेज या रेशियो में एक्चुअल नंबर देखे, ऑलवेज अज्यूम 100x इंस्टेड ऑफ योर 100, राइट? तो बी के मार्क्स कितने होने चाहिए, बी के मार्क्स होने चाहिए 120x. ओके, सो यहां से अपने पास ये आ गया कि बी की वैल्यू 120x है. अब ए के मार्क्स जो हैं वो बी के मार्क्स से 10% ज्यादा है, तो बी के मार्क्स 120x हैं, तो इसका 10% क्या होगा, 12x. तो ए के मार्क्स कितने होने चाहिए, 132x. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमको क्या गिवन है, 32x, और दैट इज इक्वल टू 272, राइट? अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 120x की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्योंकि b के मार्क्स पूछे हुए हैं 32x की वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसको निकालने का तरीका ये है कि इसको 4 से काटते हैं. देखिए 4 से कट रहा है, तो 8x, 4 6 4 8, ठीक है, 4 6 70 24, फिर ये 3 3 2 32. सो मेरे पास ये आ गया कि 8x इज इक्वल टू 60x, 68. अब अगर मैं यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 15 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 8 120 होता है, तो ये वैल्यू 120x आ गई. 15 8 120, कैरी ओवर कितना हुआ, 12. 15 6 90, 90 प्लस 12 कितना होगा, 102. सो आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा, दैट इज 1020, एंड दैट्स गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. एक एग्जामिनेशन है जहां पे एक स्टूडेंट है, वो 30 मार्क्स, उसके 30% मार्क्स है और वो 12 नंबर से फेल हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं. सो बेसिकली आई कैन से कि जो पासिंग मार्क है वो यहाँ पे होने चाहिए, और उसके 30% मार्क्स आए, तो 30% मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है. कितना कम है, 12 मार्क्स. ठीक है, दूसरा स्टूडेंट जो आया उसके 40% मार्क्स है, 40% मार्क्स, और वो पासिंग मार्क्स से उसके ज्यादा आए. कितने ज्यादा है, 28. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अपन को पता है, 30% से 40% का डिफरेंस तो 10% होगा. दैट इज इक्वल टू ये 12 हुआ, ये 28 हुआ, मतलब कितना हुआ, 40. तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 10% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट, 40. सो 30% ऑफ टोटल मार्क्स इज गोइंग टू बी व्हाट, 120. मतलब 30% तक 120 मार्क्स हैं, तो जो पासिंग मार्क होने चाहिए वो 120 से 12 ज्यादा होने चाहिए. सो दैट्स गोइंग टू बी 132. वी गॉट द आंसर. सो बेसिकली
instead of making equation, instead of making assuming variables, what you should do, आपको बस नंबर लाइन प्लॉट करनी है, थोड़ा सोचना है और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा. इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो दैट विल नॉट बी अ गुड अप्रोच. एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं. इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट में हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 56 इज 56% ऑफ एक्स. ठीक है, तो ए जो है वो अपना 56% ऑफ एक्स है प्लस 59% ऑफ वाई है. ठीक है, अब बी जो है वो 48% एक्स है और 69% ऑफ वाई है. ठीक है, ठीक है, सॉरी नॉट 69, 68. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 9% का इंक्रीज आया, 9% वाई का, और यहाँ पे 8% एक्स का डिक्रीज आया. ठीक है, अब हमें ये कंपेयर करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है. ठीक है, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज तो पता नहीं, हो सकता है एक्स 100 हो और वाई 3 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वाई 100 हो एक्स 3 हो. सो इसका मतलब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ए छोटा भी हो सकता है, ए बड़ा भी हो सकता है, तो हम फिगर आउट नहीं कर सकते. इसको सॉल्व करने के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली गोइंग टू बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि एक्स वाई से छोटा नहीं है लेकिन एक्स वाई के बराबर हो सकता है. सो अगर एक्स वाई के बराबर है, अगर यहाँ पे एक्स को मैं 1 मान लूं, वाई को भी 1 मान लूं, तो यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है. तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ गई. लेकिन अगर मैं एक्स को 2 मान लूं और वाई को 1 मान लूं, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 का डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है. इसका मतलब ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा. सो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें इसके अलावा भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इफ ए इज 10% ग्रेटर देन बी विच इज 10% ग्रेटर देन सी. इसका मतलब अगर सी 100 है तो बी की वैल्यू 110 होनी चाहिए. अब ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है, तो बी 110 है, 110 का 10% 11 होगा, तो ए जो होना चाहिए वो 121 होना चाहिए. तो जो सी 110, सी 100 और ए 121, इसका मतलब ए इज 20% लार्जर देन सी. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, अब अपने पास बचे दो स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, सो फिर यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज लिखा हुआ है तो मैं परसेंटेज को हटा ही देता हूँ क्योंकि परसेंटेज कैंसिल ही हो जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा. तो अपन देख लेते हैं कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू वॉट, 8y. तो x अपॉन y कम्स आउट टू बी 8/2, तो 4/1. तो इसका मतलब अगर x 4 है तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो y जो होगा वो x का 25% होगा, 20% नहीं होगा. मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है. सो इस केस में अपना आंसर होगा ऑप्शन सी के स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 ट्रू नहीं होगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन सी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं एक इलेक्शन में हैं, लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं. टोटल जितने वोट कास्ट हुए उसमें से 15% इनवैलिड हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे वापस देखते हैं. यहाँ पे ये जो नंबर है ये नंबर एक्चुअल नंबर है, परसेंटेज में गिवन नहीं है. तो यहाँ पे हम 100 अज्यूम नहीं कर सकते, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 100x. ठीक है, 100x में इनवैलिड कितने हो गए, 15x. बचे कितने वैलिड वोट्स, 85x. ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जीता उसको 56% मिला, जो हारा उसको 44% मिला. सॉरी, एक्स का नहीं होगा, 44% ऑफ 85x मिला. द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट इज दिस. सो बेसिकली हमें टोटल वोट कास्ट निकालना है. ठीक है, सो 44% ऑफ 85x, ये जो है ये लूजिंग कैंडिडेट का सिनारियो है. ठीक है, 11968. अब देखते हैं ये किसी से तो कटेगा ही, इसको यहां से काट सकते हैं.
11 से कटना तो चाहिए, सो 11 से काटने की कोशिश करते हैं। 4, ये क्या आएगा, 11 वंजा, फिर आएगा 0, 96, सो 8, फिर 8, 1088। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको किससे काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4 टू जा 8, 2 8, 2 7 जा 2 2 जा। ठीक है, ठीक है। अब क्या ये इसको रहने देते हैं, 85x अपना कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 27200। ठीक है, 17 से काटते हैं तो 5, 17 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 17 वन जा 17, 10, 102, 600। सो अपने पास 5x की वैल्यू 1600 आ गई। हमें निकालना कितना है, इनवैलिड वोट कास्ट, सो इनवैलिड वोट कास्ट शुड बी 15x। सो 5x अगर 1600 है, सो 15x कितना होना चाहिए, 4800। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड। सो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 4800। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनिशियली सुरेश के पास 200 रुपए हैं उसके पेटीएम वॉलेट में। ठीक है, 200 है, अब उसका 20% बढ़ गया, सो 200 का 10% होता है 20, सो 20% होगा 40, मतलब 40 रुपए उसके बढ़ गए। अभी कितना हो गया उसके पास, 240। ठीक है, अब वापस से उसका अमाउंट 25% बढ़ गया, सो 25% को अपन 1/4 बोल सकते हैं। सो 1/4 240 का क्या आएगा, 60। तो उसके पास जो पैसे हैं वो 60 रुपए से बढ़ गए, मतलब कितने हो गए, 300। पहले 200 थे, अब 300 हो गए, तो कितने का इंक्रीमेंट आया, 100 का। किस पे आया, 200 पे। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50%, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी। Now, if anyone has any doubt, kindly do leave a message in the comment box so that we can take up the doubt and help you solving it. Thank you.